شدید بارشوں کے بعد سیلاب، بلوچستان میں تباہی، ندی نالے بکھر گئے۔ بولان میں قومی شاہراہ متاثر، گوکرد کے مقام پر بی بی ناندی پل کو نقصان، جھل مکسی، خزدار اور کوہلو سمیت دیگر مقامات پر بھی صورتحال خراب، گیس پائپ لائن بھی متاثر۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں 278 ملی میٹر بارش، 300 دیہات زیر آب، حادثات و واقعات میں 8 افراد جاں بحق، 17 زخمی، متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ پی ڈی ایم اے کو 35 کروڑ روپے جاری کر دیے، لوگوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے نکالا جا رہا ہے۔ صوبائی ترجمان لیاقت شاہوانی کی پریس کانفرنس۔ دادو میں بھی سیلاب سے تباہی، ایف پی بند میں 150 فٹ شگاف، 20 دیہات زیر آب۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی جوہی آمد، متاثرہ علاقوں کا جائزہ، امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ دادو جھل مکسی میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری، وانگو پہاڑی پر پھنسے تمام ہندو خاندان محفوظ مقام پر منتقل، کوسٹل ہائی وے کھول دی گئی، طبی سہولیات اور تازہ خوراک فراہم کی جا رہی ہے۔ ISPR۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، نوشہرہ ورکا میں مکان کی چھت گرنے سے بہن بھائی جاں بحق، بادل برسنے کا سلسلہ اگلے 3 روز جاری رہے گا، محکمہ موسمیات کی پیش گوئی۔ بارش گزر گئی، پانی کی نکاسی نہ ہو سکی، کراچی والے مسائل کے نرغے میں، نشیبی علاقوں میں صورتحال ابتر، جگہ جگہ گندگی، ملی ندی کا پانی کورنگی کاسوے پر آ گیا، سڑک ٹریفک کے لیے بند۔ سرسبز اور آلودگی سے پاک پاکستان کا مشن، ملکی تاریخ کی سب سے بڑی شجرکاری، ایک ہی روز 35 لاکھ پودے لگا دیے گئے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک میں 5ویں نمبر پر، آنے والی نسلوں کے لیے ذمہ داریاں پوری کرنا ہوں گی، عمران خان کا خطاب، کورونا کے مکمل خاتمے تک حفاظتی اقدامات اختیار کرنے پر زور۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم پوری کوشش کریں اپنے ملک کو ہرا کرنے کے لیے۔ 35 لاکھ درخت آج جو لگائے ہیں، یہ ایک شروعات ہے، یہ مسلسل ایک جد و جہد، ایک جہاد ہے، کیونکہ یہ اپنے یہ نہیں کر رہے، اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم نے شہروں کے اندر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑنی، کوئی خالی سپیس نہ ہو جدھر ہم درخت نہ اگائیں۔ غیر ملکی سفیر بھی شجرکاری مہم میں شریک، چین، کویت اور آذربائیجان کے ایمبیسڈرز نے پودے لگا دیے، رضاکاروں کی خدمات کا اعتراف، عثمان ڈار کا اظہار تشکر۔ شجرکاری مہم موجودہ اور آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے ہے، سب مل کر کامیاب بنائیں، شہری بھرپور حصہ لیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ۔ عثمان بستار نے لاہور میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پشاور میں پودا لگایا۔ وزیر اعظم کی عوام اور ماحول دوست پالیسیز کا تسلسل جاری ہے، گزشتہ حکومتوں نے درختوں کو نظر انداز کیا، فیاض الحسن چوہان۔ پینتیس نالوں پر یہ کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ان کو مکمل طور پر صاف بھی کر دیا جائے گا۔ 2 لاکھ ٹن سے زیادہ سلج جو نکالا گیا ہے نالوں سے، اور یہ وہ سلج ہے جو لینڈ فل سائٹ پر پہنچایا گیا ہے، جس کا ویٹ بھی ہوا ہے، لیکن اصل ایشو جو انکروچمنٹ کے ہیں ان کو بھی اب حل کیا جائے گا۔ اور شہر قائد میں نالوں کی صفائی جاری، کئی مقامات پر مشکلات کا سامنا، تجاوزات کے خلاف بھی سخت کارروائی ہوگی۔ سندھ حکومت کسی چیز سے بری ذمہ نہیں، صوبائی وزیر اطلاعات ناصر شاہ کی پریس کانفرنس، قبضے کروانے والے ہی تجاوزات پر تنقید کرتے ہیں، ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانا چاہیے، سعید غنی کی گفتگو۔ کراچی کے علاقے شیر شاہ کے قریب نالے میں ڈوبنے والا بچہ دوسرے روز بھی لاپتہ، پانی کا تیز بہاؤ 8 سالہ آیوش کمار کو ساتھ لے گیا، ویڈیو دنیا نیوز پر، کوئی ریسکیو ادارہ مدد کو نہیں پہنچا، والد کی دہائی،
बेटे को ढूंढने की अपील। हमारा दामन साफ है तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है। हमें एक नहीं 10 नए बुलाए हम जाएंगे, हर फोरम पे जाएंगे, हर जगह पे जाएंगे, हर चीज़ दिखाएंगे। जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। तो जिनका दामन साफ है उनको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने न गलत काम किया है न किसी को करने देंगे। वज़ीर आला पंजाब का नैब में पेश होने का ऐलान। जब दामन साफ है तो डरने की क्या ज़रूरत, तमाम उमूर कानून के मुताबिक चला रहे हैं। प्रोपेगेंडा करने वालों को रोज़ जवाब देते हैं। किरदार कुशी के बजाय खराबियों की निशानदही की जाए। उस्मान बुज़दार। नैब पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा का फोकल इदारा। मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल समेत तमाम इदारों ने कारकर्दगी को सराहा। चेयरमैन जावेद इकबाल। मुल्क की मुआशी सूरत हाल इंतहाई अबतर। वज़ीर आज़म खुद माफियाज के ताकतवर होने का एतराफ़ कर चुके। IMF के एजेंडे पर तीनों बड़ी जमातें एक, मुल्की फैसले गैर मुंतखब लोग कर रहे हैं। सिराजुल हक का इस्लामाबाद में कन्वेंशन से खिताब। एहतियाती तदाबीर के शानदार नताइज। कोरोना दम तोड़ने लगा। 24 घंटे के दौरान 8 अमवात। मुल्क भर में 2,84,121 मरीज। सिंध में 1,23,549। पंजाब में 94,360 अफराद मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में 34,635 और बलूचिस्तान में 11,884 केस। कोरोना की शिद्दत में कमी, जिंदगी ट्रैक पर आने लगी। कल से पब्लिक पार्क्स, रेस्टोरेंट, कैफे और दीगर मकामात ओपन। जिम, थिएटर, सिनेमा हॉल्स, ब्यूटी पार्लर्स भी खुल जाएंगे। कबड्डी, कुश्ती, रग्बी के अलावा बाकी स्पोर्ट्स की इजाजत। ताजिरों को पुराने तरीकाकार के मुताबिक दुकानें खोलने की आज़ादी। 5 माह बाद तफरीही मकामात खुल गए। मलका कोहसार मरी में सयाहों के डेरे। हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज़, चेहरों पर खुशियां ही खुशियां। मॉल रोड पर लोगों का रश। SOPs नजरअंदाज। लाहौर में घर के भेदियों ने ही लंका ढा दी। मुलाजिमा ने शौहर से मिलकर मालिकान के 90 लाख चुरा लिए। पुलिस की कार्रवाई। फरजाना और बाबर गिरफ्तार, रकम बरामद। अफगान अमन मुज़ाकरात की राह में हायल आखिरी रुकावट भी खत्म। लोया जिरगा ने 400 खतरनाक तालिबान कैदियों की रिहाई की मंजूरी दे दी। गैर मुल्की जंगजुओं को मुतल्लिका ममालिक के हवाले किया जाएगा। करारदाद का मतन। आज़ादी के जश्न की फुल तैयारी। झंडियों की धड़ाधड़ खरीदारी। गलियां बाजार सजने लगे। हर तरफ सब सिलाली परचमों की बहार। मिली नगमों की गूंज। छोटी दुनिया भी पेश पेश। आगाज में आपको बताएं कि बारिशों और सैलाब से बलूचिस्तान में नदी नाले बिखर गए। एक डैम और पुल तबाह हो गया। एक खातून और बच्चा जाँ बहक हो गए, जबकि बोलान में कौमी शाहराह का कुछ हिस्सा बह गया। सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। दादू में नहर में शिगाफ से 20 देहात ज़ेरे आब आ गए, जबकि पाक फौज ने मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। बारिशों और सैलाब ने बलूचिस्तान और सिंध के जिला दादू में तबाही मचा दी। नदी नालों में तोगानी। बुलान में 2 मकामात पर कौमी शाहराह का कुछ हिस्सा बह गया। झल मक्सी में राब्ता सड़क, 136 मकानात तबाह। बीबी नानी जियारत पुल टूट गया। सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। उस्तार में एक डैम टूट गया। वड में नाले में डूबकर एक बच्चा जाँ बहक हो गया। दीवार गिरने से खातून दम तोड़ गई। 5 अफराद जख्मी हुए। कोहलू में भी सैलाबी पानी ने मुतादिद घरों को नुकसान पहुंचाया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का कहना है कि सैलाब से 300 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आए। कोस्टल हाईवे पर शगाफ पुर करके ट्रैफिक बहाल कर दी है। 15 अजला बलूचिस्तान के वो मुतासिर हुए हैं। 300 के करीब जो देहात हैं वो ज़ेरे आब आए हैं। बीबी नानी के मकाम पे जो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रिज है वो मुकम्मल
टूट चुका है। अल्टरनेट अरेंजमेंट के तौर पे रेलवे की जो सर्विस है वो बहाल कर दी गई है। कोस्टल हाईवे पे बदुक के मकाम पे जो एक शगाफ पड़ी थी उसको रेस्टोर कर दिया गया है। बलूचिस्तान से आने वाले रैली ने सिंध के जिला दादू में भी हर चीज तहस नहस कर दी। FP बंद में 150 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी 20 से ज्यादा देहात में दाखिल हो गया। वजीर आला सिंध ने जोही का दौरा करके इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत की। पाक फौज की टीमें दादू और छलमक्सी में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए पहुंच गईं। ISPR के मुताबिक आर्मी इंजीनियर्स ने दादू में तोगयानी और नए गज डैम का पुश्ता टूटने के बायस फंसे अफराद को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुतासरा अफराद को तिब्बी सहूलियात की फराहमी और 1000 अफराद को खाना भी फराहम किया गया। झलमक्सी में वांगू पहाड़ी पर फंसे तमाम हिंदू खानदानों को 8 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। तो 3 दिन की बरसात के बाद एक बार फिर कराची का इलाका गुलबहार कश्मीरी महल्ला गंदगी और गलासत का ढेर बन गया। मुसलसल परेशानी का शिकार शहरियों ने हुकूमत सिंध से फौरी इक़दाम करने का मुतालबा कर दिया। कराची से ही देखिए मोहन्नस अहमद की रिपोर्ट। हर बरसात की तरह इस बार भी गुलबहार का इलाका कश्मीरी मोहल्ला बारिश और करीब ही बने नाले के पानी में डूब गया। 3 रोज तक बादल बरसे तो पूरा मोहल्ला गंदगी और गलाजत का ढेर बन गया। घुटनों से ऊपर था ये, और बच्चे मर्द कोई सी भी अगर इमरजेंसी अगर होती है तो वो सबके सब फिर वो इसी में तो फिर वो बाहर निकलते हैं। खुदारा हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि इस इलाके को कश्मीरी जन्नत की तरह आप बना दें, तो ये जो गंदगी कचरा है इसको साफ करवा दें। हम आपकी बड़ी मेहरबानी हो। इलाका मकीनों के मुताबिक मामला एक दिन का नहीं, हर बार जिम्मेदारान को कबल अज़ वक्त मुत्तला किया जाता है, लेकिन होता कुछ भी नहीं। ईद की 4 रात से अभी तक तो सफा हुआ नहीं है। ईद भी की नमाज भी हम घर में भी नहीं पढ़ सके। गंदगी इतनी हो रही है जो हम किसी जगह न जा सकते हैं, न किसी अपने पढ़ाई के जाते हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि जब तक करीब ही बने नाले की दीवारें तामीर नहीं हो जाती ये मसला ऐसे ही रहेगा। सिंध हुकूमत ने कश्मीरी मोहल्ले की इस सूरत हाल का जायजा जरूर लिया है, लेकिन शहरी कहते हैं इस सूरत हाल को तब्दील करने के लिए जल्द अज जल्द मौसर इक़दाम किए जाएँ। कैमरामैन साकिब खान के साथ मोहन्नस अहमद, दुनिया न्यूज़, कराची। इसी पर वजीर बल्दियात नासिर शाह ये कहते हैं कि कराची में नालों पर तजावुजात को कानूनी बनाया गया, लेकिन तमाम तजावुजात का खात्मा होगा। कराची का 35% हिस्सा KMC के पास, जबकि दीगर इलाके मुख्तलिफ कंटोनमेंट के पास आते हैं। उन इलाकों में भी कोई मसला आता है तो इल्ज़ाम सिंध हुकूमत को दिया जाता है। बारिश के बाद सूबाई वज़रा नासिर शाह और सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर सईद गनी बोले, नालों पर कायम तजावुजात को कानूनी शक्ल दी गई है और जिन्होंने काम किया वही ज्यादा शोर मचाते हैं। हैरत इस वक्त उस वक्त होती है जब वो तनकीद कर रहे हो जिन्होंने कब्जे करवाए हों। कब्जा ना उठाने के मुजरिम तो हो सकते हैं, हमसे बिल्कुल सवाल करें, लेकिन जो कब्जा करवाने वाले मुजरिम हैं उनको भी तो कटरे में लाया जाए ना। उनसे भी तो पूछा जाए कि शहर के जो लाखों करोड़ों लोग हैं जिनकी जिंदगियों को आपने मुसीबत में डाल दिया है, जो असल जिम्मेदार है उनसे भी सवाल होना चाहिए। नासिर शाह का कहना था कि शहर के 30 से 35% हिस्से का निजाम KMC जबकि दीगर हिस्सों का निजाम मुख्तलिफ कंटोनमेंट बोर्ड्स के पास है, लेकिन इल्जाम सिर्फ सिंध हुकूमत पर आता है। अलीर कैंटोनमेंट है, फैसल बेस कैंटोनमेंट है, कोरंगी कैंटोनमेंट है, एक मसरूर PF का भी उसमें एक एरिया जो है आ जाता है। जब वहाँ पे भी कोई इस तरह के इश्यूज आते हैं तो उनका ज़ाहिर है जो ब्लेम है वो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ पर आता है, फिर उसके साथ साथ सिंध गवर्नमेंट को भी उसमें ब्लेम दिया जाता है। वज़ीर